ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी तुम लोगों को दे रहा हूं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, एक कार ए moves with velocity, कार का वेलोसिटी क्या है 20 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। एंड कार बी moves with velocity, कार बी है ना, moves with velocity 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी of B with respect to A, है ना। एक्चुअली मैं डायग्राम बना लेता हूँ तुम लोगों के लिए। ये है डायग्राम, है ना। ठीक है ना। तो ये तो एक है, ये एक्चुअली ए है ना। ऐसे जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, मैं बी का भी बना लेता हूँ। तुम रुको बेटा, मैं कार का तो देख, जस्ट ट्राई एंड वॉच द डायरेक्शन ऑफ मोशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये बी है, इसका जो स्पीड है, ठीक है ना, तो बी जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे पास क्वेश्चन पहले से अवेलेबल था क्या? नो सर। सर ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? हाँ, पहला ही स्लाइड है बिल्कुल, मतलब नया स्लाइड है बिल्कुल, ओके सर। ताजा स्लाइड है। ठीक है ना। A with respect to B, find the relative velocity of sorry, B with respect to A, हाँ, वेलोसिटी ऑफ B with respect to, वेरी गुड स्वयं शुभम बेटा। स्वयं शुभम को छोड़ के और किसने आंसर बनाया अभी तक? श्रद्धा, वेरी गुड बेटा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने लोगों ने बनाया अभी तक? मैं बता दूं, वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to A can be, very good, very good, very good, stated as
velocity of B with respect to A, which is equal to velocity of B. Very good, very good. Minus velocity of A. 15 meter per second, velocity of B minus A, 20 meter per second. That is minus 5 meter per second towards right. Or 5 meter per second towards 5 meter per second towards left. है ना, 5 meter per second towards left. So velocity of car B, velocity of car B with respect to A, with respect to A is 5 meter per second towards left, है कि नहीं? So this is 5 meter per second towards left, है ना बच्चों? Clear? Yes, sir. Okay, next question. I'll go to next question now. ठीक है बच्चों? Next Yes, sir. question ये है, बढ़िया क्वेश्चन है. A person walks up a stationary escalator, है ना, in t1 seconds. If he remains stationary, on the escalator, then it takes time up. Then it can take him. Then it can take him up in t2 seconds. Then it can take him up in t2 seconds. If the length of the escalator is L, then if the length of the escalator is L, then determine the speed of man with respect to the escalator. First, it is not determine the speed of the man with respect to the escalator. Bit B,
How much time would it take him to walk up the moving escalator? How much time would it take him? Would it take him to walk up the moving escalator? उसको मूविंग एस्केलेटर में चलने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम? ठीक है ना? चलो सब लोग जो भी हो मीटिंग में, अमीशा, आयुष, दीपिका, जैस्मिन, खुशी, नंदनी, नंदिता, Can you move, निकिता, निशा, चलो आंसर बताओ। पल्लवी, प्रीति, sir? राजश्री, कोई Can भी? हाँ बोलो बेटा। sir, can you move to the previous page? सौरभ, हाउ आर यू? आई मूव टू द प्रीवियस पेज। Yes, sir. ये तुमने नहीं बनाया क्या? ये तो तुमने बना लिया था ना। No, sir, I am having doubt whether it is left or right. The answer 5 अरे meter per second towards. -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट है, which means 5 मीटर Yes. पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। Okay, sir. तो तुमने तो सही आंसर दिया था, तुमने तो बोला था ना -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। Yes, sir. अगर मैं चेक करूं तो तुम्ही ने तो बोला था -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। Sir. अरे कहाँ गया? तुमने तो दिया था आंसर। हाँ वही तो दिया है तुमने आंसर। अरे -5 टुवर्ड्स राइट है तो 5 टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं होगा? Yes. एक डायरेक्शन में माइनस इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, है ना? एक डायरेक्शन में माइनस इज इक्वल टू उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अच्छा ये क्वेश्चन को समझ जाओ बच्चों पहले अच्छे से, है ना? A person walks up a stationary escalator in t1 seconds. अच्छा, if he remains stationary on the escalator, then it can take him up in t2 seconds. ठीक है ना? If the length of the escalator is L, then determine the speed of the man with respect to escalator. Man का speed with respect to escalator. How much time would it take him to walk up the moving escalator? To walk up the moving escalator. ठीक है ना? ओके अब देखो बेटा, a person walks up a stationary escalator in t1 seconds. So if the length of the escalator is L, if the person can walk up the stationary escalator in t seconds, then है ना, velocity of person क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा? वीपी। क्या होगा वीपी? एल बाय t1, because he can walk up the up the stationary escalator in t2 or t1 seconds, है ना? नेक्स्ट वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या होगा? Because if he is stationary on the escalator and the escalator is moving, ठीक है ना, then he can cross the escalator in t2 seconds. So what is velocity of escalator? VE is equal to L by t2. If the man is stationary, if he remains stationary on the escalator and the moving escalator can take him up in t2 seconds, then what is velocity of escalator? VE L by t2. So determine the speed of the man with respect to escalator. अच्छा ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ मैन
है ना, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, इसको कैसे लिखेंगे, vp स्लैश e, that is equal to speed of the person minus speed of escalator, that is equal to L by T1 minus L by T2, है ना, imply speed of man with respect to escalator is equal to L by T1 minus L by T2। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है क्या? जैस्मिन बेटा समझ में आ रहा है ना? प्रजक्ता, वेर आर यू प्रजक्ता? अनीशा बेटा समझ में आ रहा है? पल्लवी? Yes, sir. Yes, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, है ना, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर गया, ठीक है ना, बी। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर? तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, है ना। तो देखो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, है ना, how much time would it take him to walk up the moving escalator, ठीक है ना। net velocity of the man, net velocity of the man on moving escalator, when the escalator is moving, है ना, on moving escalator is, है ना, velocity of man on the stationary escalator plus velocity of escalator, है ना, that is equal to L by d1 plus L by d2, ठीक है ना। L by d1 plus L by d2 ये उसका नेट वेलोसिटी है ना, which is equal to v net, that is net velocity, so that is the net velocity, ठीक है ना। Okay students, can I move to the next slide? बच्चों इतना समझ में आ गया? Dear students, are you able to understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. sir. Clear? प्रीति, है ना, इशिका, इकरा बेटा, अनीशा, आयुष बेटा समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अरे मुझे थोड़ा जल्दी रिप्लाई चाहिए। ओके, हाँ, तो फिर टाइम टेकन, बाय पर्सन, है ना, टू वॉक अप द to walk up the moving escalator, to walk up the moving escalator is, है ना, what is the time taken, है ना, is, है ना, t is equal to total distance by net velocity v net, that is equal to L by t1 plus L by t2, that is equal to t1 t2 by t1 plus t2, है ना।
implies total time taken is equal to T1 T2 by T1 plus T2, है ना बच्चों? ठीक है, ये आ गया आंसर. Yes, sir. So I want to now go to the next question. Yes, sir. Okay. ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बच्चों तुमको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन. ठीक है ना, मतलब इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है. ठीक है, चलो मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन है, टू टाउन्स A and B, two towns A and B are connected by a regular bus service, are connected by a regular bus service, are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes, with the bus leaving in either direction in 10 minutes. ठीक है ना? A man cycling with a speed of 20 kilometers per hour. A man cycling with a speed of 20 kilometers per hour. 20 kilometers per hour in 20 kilometers per hour in, ठीक है ना, the direction A to B, in the direction A to B, in the direction A to B, notices that a bus goes past him. A bus goes past him, notices that a bus goes past him every 18 minutes. Every 18 minutes in the direction of his motion. In the direction of his motion. In the direction of his motion. ठीक है ना? What is the period T of the bus service? है ना? What is 18 minutes every in the direction of his motion?
and 6 minutes in the opposite direction of its motion. And 6 minutes in the opposite direction of its motion. And 6 minutes in the opposite direction of its motion. ठीक है ना? What is the period T of the bus service and with what speed do the buses ply on the road? What is the period T of the bus service and with what speed? And with what speed? है ना? Assume constant. Assume constant. The buses ply on the road. The buses ply on the road. ठीक है ना? With what speed, assumed constant, the buses ply on the road. ठीक है ना? दो टाउन है A, B. By regular bus service with a bus leaving in either direction in 3 minutes. A man cycling with a speed of 20 kilometers per hour in the direction A to B notices that a bus है ना, goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and 6 minutes in the opposite direction of its motion. ठीक है ना? What is the period T of the bus service and with what speed the buses ply on the road? समझ में आया क्वेश्चन? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है. चलो, कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? देखो बच्चों, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दो टाउन है, दो अलग अलग टाउन है, एक ए है और एक बी है ना? और एक साइक्लिस्ट जो है साइकिल से जा रहा है ऐसे फ्रॉम ए टू बी. तो साइक्लिस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है ना, कि उसको हर 8 मिनट्स में, हर 18 मिनट्स में साइक्लिस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है
कि उसको एक बस ओवरटेक किया ना, ठीक है, तो दूसरा बस जो है, दो बस के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? दो बस के बीच में टाइम इंटरवल क्या है? दो बस के बीच में टाइम इंटरवल है टी मिनट्स का। दो बस के बीच में जो टाइम इंटरवल है कितना है? टी मिनट्स, ठीक है ना। दूसरा बस जो है, ठीक है ना। अच्छा, साइक्लिस्ट का वेलोसिटी क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। साइक्लिस्ट का वेलोसिटी क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो साइक्लिस्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 18 मिनट्स क्या होगा? 18 minutes is equal to, I can say that 18 by 60 hours. So 18 minutes is equal to 3 by 10 hours, ठीक है ना। तो कोई भी दोनों बस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अगर बस का वेलोसिटी vb है, कोई भी दोनों बस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों? कोई भी दोनों बस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? vp इंटू टाइम इंटरवल 3 by 10 आवर्स, है कि नहीं। कोई भी दोनों बस के बीच में ये टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। अब साइक्लिस्ट ये देख रहा है कि ना सेम डायरेक्शन में उसको कोई भी बस जो है, मतलब बस, ठीक है ना, ये बस x है और ये y है, ठीक है ना। तो साइक्लिस्ट ये देख रहा है कि उसको कोई भी दोनों कंसेक्यूटिव बस जो है सेम डायरेक्शन में इन 18 मिनट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों बस के बीच में टाइम इंटरवल क्या है? टी मिनट्स। टी मिनट्स मतलब बेसिकली टी बाय 60 आवर्स। टी मिनट्स मतलब बेसिकली टी बाय 60 आवर्स, है ना। तो कोई भी दोनों बस के बीच में जो टाइम इंटरवल है, अच्छा वेरी गुड बेटा सपना, है ना। कोई भी दोनों बस के बीच में जो टाइम इंटरवल है टी मिनट्स मतलब टी बाय 60 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टी बाय 60, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे vb को क्या मान लिया? वेलोसिटी ऑफ बस। vb को मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है ना। तो अब मान लो कि साइक्लिस्ट को पहले तो बस x ओवरटेक कर रहा है, पहले तो साइक्लिस्ट को बस x ओवरटेक कर रहा है, उसके बाद y ओवरटेक करेगा। लेकिन तब तक मान लो साइक्लिस्ट कुछ आगे चला गया, है ना। तब जो है बस y अभी उसको ओवरटेक कर रहा है, और बस x जो है वो तो ऑलरेडी कुछ आगे चला गया है ना, ओवरटेक करके, ठीक है ना, साइक्लिस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली बस x जब ओवरटेक कर, बस y और बस x के ओवरटेक करने के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? t बाय 60 आवर्स है, सॉरी टाइम इंटरवल कितना है? 18 मिनट्स है, 3 आवर्स, 3 by 10 आवर्स, है ना। द टाइम इंटरवल between bus x overtaking the cycle and bus y overtaking the cycle is how much? 3 by 10 hours. तो उतने में साइक्लिस्ट कितना आगे जाएगा? उसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर इंटू बस y उसको कितना टाइम के बाद ओवरटेक करेगा? अभी से 3 by 10 आवर्स के बाद, 18 मिनट्स के बाद ओवरटेक करेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, बस वाई पहले साइकिल के कुछ पीछे था, जहां पे बस एक्स उसको ओवरटेक कर रहा था, अब बस वाई जो है साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है।
ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा? पहला पार्ट तो vp इंटू टी बाई 60 है, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट इज इक्वल टू 20 इंटू 3/10 है, ठीक है ना? 20 इंटू 3/10, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली अगर ये देखा जाए, ठीक है, कि अच्छा उतने में बस वाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बस वाई ने उतने में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम टेकन, है ना? वो तो बस एक्स से कितना पीछे है ना? t/60 मिनट्स पीछे है, लेकिन सेम टाइम में 3/10 आवर्स में 3/10 आवर्स में बस वाई जो है वो साइक्लिस्ट के पास आ गया 3/10 आवर्स, ठीक है ना बच्चों? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि vp इंटू t/60 प्लस 20 इंटू 3/10 इज इक्वल टू vp इंटू 3/10? ये इक्वेशन समझ में आ गया बच्चों? सर और एक बार बोलिए। और एक बार बोल दूं? अच्छा देखो, अच्छा मैं क्या बोल रहा था बेटा कि अपना जो साइक्लिस्ट है वो मान लो ये एक पॉइंट पे है, जहां पे साइक्लिस्ट है मान लो उसी इंस्टेंट में उसको एक बस जो है ओवरटेक कर रहा है, बस एक्स, है ना? बस एक्स उसको ओवरटेक कर रहा है उसी इंस्टेंट में, तो उसके पीछे और एक बस भी होगा, मान लो बस वाई। तो अभी बस एक्स और बस वाई के बीच में जो डिस्टेंस है, साइक्लिस्ट और बस वाई के बीच में भी वही डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ बस इनटू दोनों बस के बीच में स्टार्ट होने का टाइम इंटरवल क्या है? t मिनट्स, बिकॉज एवरी t मिनट्स ए बस इज, है ना, लीविंग फ्रॉम द स्टॉपेज। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मान लो बस वाई जहां पे साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है, अगर साइक्लिस्ट का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, बस वाई साइक्लिस्ट को जहां पे ओवरटेक करेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो मान लो तब तक साइक्लिस्ट कुछ आगे चला गया होगा, साइक्लिस्ट कुछ आगे चला गया होगा, ठीक है ना? तो कोई भी सेकंड बस, कोई भी कंसेक्यूटिव बस साइक्लिस्ट को सेम डायरेक्शन में कितने टाइम इंटरवल में ओवरटेक कर रहा है? कितने सर टाइम इंटरवल में 18 ओवरटेक कर रहा है? मिनट। मान लो एक बस ओवरटेक कर लिया, दूसरा बस जो है साइक्लिस्ट को कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा? सर 18 मिनट्स। हाँ, सर 18 मिनट्स। 18 मिनट्स ना? हाँ, 18 मिनट्स मतलब 3/10 आवर्स है ना? तो साइक्लिस्ट उतने टाइम में थोड़ा आगे चला जाएगा कि नहीं? दूसरा बस, बस वाई साइक्लिस्ट को ओवरटेक करते करते साइक्लिस्ट कुछ आगे भी तो जाएगा ना? लेकिन बस एक्स ने जब साइक्लिस्ट को ओवरटेक किया, है ना, उसके बाद जब बस वाई साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगा, उन मतलब वो टाइम इंटरवल कितना है? 18 मिनट से 3/10 आवर्स। तो उतने में साइक्लिस्ट कितना आगे जाएगा? उतने में साइक्लिस्ट कितना आगे जाएगा? 20 × 3/10, स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं? ठीक है ना? अब यस बस सर। वाई जो है वो मान लो यहाँ पे साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है, बस वाई जो है मान लो वो यहाँ पे साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है, तो बस वाई कितने टाइम के बाद ओवरटेक कर रहा है साइक्लिस्ट को कंपैरेटिवली?
वही 18 मिनट्स के बाद ना, उतने 18 मिनट्स में बस वाई कितना ट्रेवल करेगा, पूरा पीछे से यहां तक, वीपी इंटू 3/10। वही 18 मिनट में बस वाई पीछे से आके साइकिलिस्ट के पास पहुंच गया, ठीक है ना। तो अभी ये टोटल डिस्टेंस को तुम कंपेयर करो बेटा, ना कंपेयर दिस टोटल डिस्टेंस, कंपैरिजन बन रहा है ना अभी, तो आ रहा है ना वो कंपैरिजन से ये इक्वेशन, आ रहा है कि नहीं बेटा। यस सर। अच्छा, तो मेरा यही बोलना है कि वीबी, है ना, अब ये जो समझ में आया ना बेटा, 100% समझ में आया। यस सर। अच्छा, वीपी इंटू T/60 माइनस, सॉरी, वीपी इंटू, है ना, तो बेसिकली आई कैन से दैट नाउ वीपी इंटू, है ना, 3/10, है ना, माइनस T/60 इज इक्वल टू, ये कितना है, 20 इंटू 3/10 कितना है, 6, दैट इज इक्वल टू 6। ये हुआ इक्वेशन 1। इज दिस क्लियर ऑल स्टूडेंट्स। वैसे बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है मुझे, यस सर। सुधांशु ने दे दिया आंसर, श्वेता ने दे दिया, खुशी ने दे दिया, आई मीन सपना ने दे दिया, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट है ना, राजश्री बेटा समझ में आया, दीपिका, Yes, sir. जैस्मिन, श्रुति, शेखर, शदाब, प्रीति, शताक्षी, निशा बेटा, निकिता, Yes, sir. इकरा, बच्चों इतना समझ में आ गया ना। अभी ना, अभी एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे, अभी ना ऑपोजिट डायरेक्शन का देखते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या क्या है, मान लो ये साइकिलिस्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन का देखते हैं, मान लो ये साइकिलिस्ट है। अब एक बस ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, अब ये बस है, अब ये बस है, एक बस उसको इसी इंस्टेंट में ओवरटेक कर रहा है, एक बस जो है उसको इसी इंस्टेंट में ओवरटेक कर रहा है, समझ में आया ना, ठीक है। तब मान लो दूसरा बस जो है वो कुछ पीछे है, तो बेसिकली दोनों बस के बीच में यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, टी मिनट्स। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, वीबी इंटू T/60। तो कोई भी दोनों कंसेक्यूटिव बस के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना, सेपरेशन कितना होता है, वीबी इंटू T/60, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो ये बस 1 है और ये बस 2 है, बस 1 और बस 2 के बीच में जो, जब बस 2 साइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगा वो कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, बस 2 जो है जब साइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगा तो कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, अरे 6 मिनट्स में ओवरटेक करेगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी बस साइकिलिस्ट को कितने, मतलब कितने टाइम इंटरवल में ओवरटेक करता है, दोनों कंसेक्यूटिव bus goes past him every 18 minutes in the direction of its motion and 6 minutes in the opposite direction of its motion। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको हर बस जो है एवरी 6 मिनट टाइम इंटरवल में क्रॉस कर रहा है ना, समझ में आया। तो ये जो बस 2 है साइकिलिस्ट को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा, 6 मिनट के बाद। तो उतने 6 मिनट के बाद साइकिलिस्ट भी तो थोड़ा आगे आ गया होगा ना, तो उसी 6 मिनट में साइकिलिस्ट भी तो आगे, बस 2 ने 6 मिनट के बाद उसको ओवरटेक किया, तो बस 2 बेसिकली कितना डिस्टेंस चला, वीपी इंटू 6 मिनट्स, मतलब 6/60 आवर्स।
साइक्लिस्ट कितना आगे जाएगा उसी टाइम में, साइक्लिस्ट कितना टाइम जाएगा उतने टाइम में, उसका स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इंटू टाइम टेकन 6/10। अब है ना, यहाँ पे अगेन टोटल डिस्टेंस को कंपेयर करो। कैन आई से दैट vp into t by 60 is equal to 20 into 6/10 plus vp into 6/60? क्लियर? अरे भाई क्लियर है ना, या नहीं Yes, समझ sir. में आया? क्लियर है सर। आई मीन 6/60 है ये, सॉरी ये 6/60 है ना। बच्चों ये समझ में आया ना? स्वयं शुभम, Yes, sir. क्लियर क्लियर पक्का? Yes, sir. सौरभ, अनीशा, जैस्मिन, जैस्मिन बेटा तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो मुझे। साक्षी, यस सर। शेखर, वेरी गुड बेटा, शेखर वेरी गुड। निशा, योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड। ओके, नाउ वीबी है ना बाय 60 होल इनटू t minus 6 is equal to 20 into 6/60 है ना, implies vp into t minus 6 है ना, that is equal to 120। ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या था? अच्छा, इक्वेशन 1 को हम थोड़ा ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, vp और into 18 minus t is equal to 360। vp into 18 minus t is equal to 360। नेक्स्ट वाला क्या है ना? तो ये है ना, एक तो इक्वेशन है vp into 18 minus t is equal to 360 और एक है vp into t minus 6 is equal to 120। take the ratio 18 minus t by t minus 6 is equal to 3 is equal to 3 है ना? ये है ना, implies 18 minus t is equal to 3t minus 18 implies 4t is equal to 36 implies t is equal to 36/4 है ना? t is equal to 36/4 that is equal to 9 minutes। वेरी गुड वेरी गुड, 9 मिनट्स आंसर मिल गया था मुझे। अगेन अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ vp into 9 minus 6 is equal to 120 implies vp कितना होगा? 40 किलोमीटर/आवर हो गया ना? तो vp कितना होगा? 40 किलोमीटर/आवर।
ठीक है ना? इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, समझ में आ sir. गया ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो अभी जो है ना, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोग को। एवरीवन वाज क्लियर? तो सब लोग क्लियर थे ना? अच्छा देखो, देखो बेटा, है ना, जैसे मैंने बोला था तुम लोगों को कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है b विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, velocity of b with respect to a, velocity of b minus velocity of a, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यही बोला था मैं तुम लोगों को, एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a। सेम वे में आई कैन आल्सो से दैट s relative displacement is equal to relative velocity into time taken। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ना, separation of b with respect to a is equal to velocity of b with respect to a into time taken। ठीक है, at the same time, है ना, I can also say that separation of a with respect to b is equal to velocity of a with respect to b into time taken। ये समझ में आ गया, है ना? दिस इज फॉर नो एक्सीलरेशन, मतलब जब है ना स्पीड कांस्टेंट है, Sir, दिस इज द केस। हाँ बच्चों, is R के बाद P है वो A। क्या है? S R E के बाद क्या है वो P है। कहाँ पे? सेकेंड आंसर। सेकेंड लाइन, कौन सा इक्वेशन? पहला, फर्स्ट। दूसरा, तीसरा? वो फर्स्ट। एस रिलेटिव, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो उसका एग्जांपल दिया मैंने उसके बाद, जैसे कि मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a is equal to relative velocity of b with respect to a into time taken। Similarly, relative displacement of a with respect to b is equal to relative velocity of a with respect to b, है ना, into time taken। ठीक है ना? तो सिमिलरली फॉर एक्सीलरेशन केस, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव एक्सीलरेशन इनटू टाइम टेकन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a is equal to initial velocity of b with respect to a plus acceleration of b with respect to a into time taken।
At the same time, I can also say that final velocity of A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to B plus acceleration of A with respect to B into time taken. क्लियर है बच्चों? बच्चों ये क्लियर है ना? Yes, sir. Okay. At the same time, I can also say that relative displacement is also equal to initial relative velocity plus half into relative acceleration into time taken. ठीक है? Like relative displacement of B with respect to A is equal to relative velocity of B with respect to A plus half into acceleration of B with respect to A into time taken. है ना? At the same time, relative displacement of A with respect to B is equal to initial relative velocity of A with respect to B plus, अच्छा ये t square है ना, sorry, plus half into acceleration of A with respect to B into t square. Clear? At the same time, V relative final relative velocity square is equal to initial relative velocity square plus 2 times relative acceleration into relative displacement. है ना? So I can say that speed of B with respect to A, final velocity of B with respect to A square is equal to initial velocity of B with respect to A square plus 2 times acceleration of B with respect to A, है ना, into displacement of B with respect to A. ठीक है? At the same time, final velocity of A with respect to B square is equal to initial velocity of A with respect to B square plus 2 times acceleration of A with respect to B multiplied with displacement of A with respect to B. Is that clear? तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव एक्सीलरेशन, है ना, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज कर सकते हैं, है ना, और स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला में भी रिलेट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बच्चों ये क्लियर है ना? श्योर है ना? तो चलो, है ना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, वो अगले क्लास में हम कुछ कवर कर लेंगे. ठीक है ना?